So today the next set of ratios, activity ratios, or you can also call them turnover ratios. Turnover refers to sales, revenue generated from sales. Activity ratios, what would it show? What would it indicate? It would indicate the efficiency of the firm. It would indicate the rapidity of the firm, how the resources are being utilized to generate revenue, how resources at its disposal are utilized to generate revenue. To generate revenue का मतलब सेल्स, सब कुछ जो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे इट वुड बी ऑन सेल्स बेसिस. On the basis of sales we can tell whether the firm is doing well or not. इसमें all the activities of the firm, किस तरीके से जो है वो डेब्ट कलेक्ट करती है, किस तरीके से वो क्रेडिटर्स को अपनी पेमेंट करती है, किस तरीके से जो है सेल्स जनरेट होती है, और किस तरीके से आपका स्टॉक जो है उसको आप कन्वर्ट करते हैं सेल्स में. तो दीज ऑल आर एक्टिविटीज, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज. दिस रेशियो indicates the efficiency of the firm. This ratio indicates the efficiency of the firm to convert stock into sales, to convert debtors into cash, and how rapidly you are paying to your creditors. These will be some of the ratios which we will study in this. All will be calculated on the basis of revenue from operations, or we can also call it cost of goods sold. Cost of goods sold. Cost of goods sold means, the formula is already clear to you. You know the formula for cost of goods sold. It is opening stock plus net purchase plus direct expenses minus closing stock. यह है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है नहीं? और आप कैसे निकाल सकते हैं दूसरा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस लास्ट ईयर यानी ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है नहीं? वो जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसमें ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? ग्रॉस प्रॉफिट का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला था वो क्या था? है? यस. Good morning, sir. What was the formula? Net sales minus cost of goods sold. Forgot? लास्ट ईयर आपने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नेट सेल्स हियर इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ठीक है नहीं? तो सबसे पहला इसमें फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री turnover ratio, and it is cost of revenue from operation upon average inventory. Cost of revenue from operation plus average inventory is the formula for inventory turnover ratio. It will also come in times. It will come in times. कल जैसे हमने पढ़ा था. Now, what are we going to find in this
cost of revenue from operations upon average inventory. In this ratio, the significance of this ratio is to know, to calculate how many times stock or inventory is being converted into sales. कि कंपनी एक साल में 3 बार जो भी सामान बनाती है उसे बेच देती है. दूसरी सेम टाइप ऑफ कंपनी, सपोज हम आजकल जैसे मोटर व्हीकल्स की बात करें, कार्स की बात करें, अलग अलग कंपनीज हैं, तो आप देखते हैं उनकी कंपनीज का मार्केट शेयर कैसे पता चलता है. वो कंपनीज जो अपना प्लॉट बनाती है एक बार में उन्होंने 10,000 कार बनाई, तो क्या अगले 2-3 महीने में 10,000 कार बेच पाए? जब उन्हें बेच लेंगे तभी दूसरा स्लॉट बनाएंगे वो 10,000, अगेन उसको भी बेच दिया, फिर अगेन 10,000 वो लॉट भी बेच लिया. इन अ ईयर ए कंपनी सेल्स इट्स स्टॉक 3 टाइम्स. उसका एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आएगा? 3 टाइम्स. सेकंड कंपनी उसी तरह की कार बनाती है एंड इट सेल्स 5 टाइम्स, और दूसरी है वो 6 टाइम्स. तो ये क्या शो करेगा? जो कंपनी ज्यादा बार अपना स्टॉक बेच रही है वो अपने स्टॉक को सेल्स में जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर रही है. इट मींस टू से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उनका ज्यादा होगा. जितनी ज्यादा आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा ऑफ द फर्म. इसका मतलब उतना ही ज्यादा आपकी मार्केट में डिमांड है. मार्केट शेयर विल बी मोर. ऑल्सो the dividend provided to the shareholders will be regular. It will be more. Interest payment जो भी आपने लोन्स वगैरह लिए हैं will be regular. Efficiency of the firm will be at a higher level. These all will indicate that the firm is doing very well. Very rapidly it is converting its stock into sales. So higher should be a sign of efficiency. Higher should be that the stock is being converted into sales very rapidly. तो आपके डिस्पोजल पे जो चीज है, जो स्टॉक है, उसको आप बार बार जल्दी जल्दी क्या कर पा रहे हैं? बेच पा रहे हैं. इसका मतलब ये है. जो दो इसमें फॉर्मूले हैं उस पे बेस्ड आप एक पहला न्यूमेरिकल देखिए. Are you getting it? Just try to solve it. Just try to solve it by writing the formula. Practical ले लीजिए और you take illustration. But just try to solve it. उसमें फॉर्मूले में आपको सारे, एक तो ये every formula should be clear to you. Cost of revenue from operation. Krish, what is the formula? क्रिश को सुनाई नहीं दिया. क्रिश? यस सर. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, द फॉर्मूला इज एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री upon 2. Opening inventory plus closing inventory upon 2. That is the average stock. Average of anything is sum of the items divided by number of items. तो वो तो सिंपल है. Average inventory turnover ratio, debtors turnover ratio and creditors turnover ratio. ये 3 रेशियो है. In exam, I would say there are less chances of this ratio to be asked, but practical point of view, these are very important. Examiner asks many questions from these particular ratios. What do they indicate? Higher or lower? What is better? How do we calculate it? What are the various items involved in it? Right? In formulas के भी जो वो है पूछ लेंगे आपसे. तो सबसे पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, cost of revenue from operation. The formula is Deepti. ओपनिंग स्टॉक नोट करो प्लस नेट परचेज. नेट परचेज मींस परचेज माइनस परचेज रिटर्न. कई बार परचेज रिटर्न बच्चे उसमें माइनस नहीं करते, डायरेक्ट परचेज लिख देते.
opening stock plus net purchase plus direct expenses minus closing stock रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है सेल्स, नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका फॉर्मूला है ये ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है बेटा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है नेट सेल्स। ओके, डोंट कंफ्यूज। इसलिए यहां पर ये फॉर्मूला है आपका एक और, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आप फॉर्मूला भूल गए ना, ग्रॉस प्रॉफिट वाज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS। वैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन ऑल्सो बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन when you will solve it, then you have to see what can be applied to it, which one देखो उसमें ये वाला क्वेश्चन और इसके आगे टू न्यूमेरिकल्स चेक करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। नंबर क्वेश्चन नंबर सर, इलस्ट्रेशन 47, 48। और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं फॉर्मूले में। फॉरगेट अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी इग्नोर्ड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद है, all factory expenses related to production, manufacturing, wages, carries inward वाले सारे, outward वाले कोई नहीं, carries inward, freight, octroi, cartage, import duty, custom duty, light, gas, fuel, power, all these are direct expenses। उसमें आपको indirect भी दिए होंगे, don't get confused, don't add them। नेट परचेज फॉर्मूला है, अगर परचेज रिटर्न नहीं है तो परचेज ही नेट परचेज है ना, परचेज ही फिर नेट परचेज है। तो it will come in times and more than 5 or 6, more than 5 is very good for the company, more than 5, 4 तक भी अच्छा है, राइट। अगर कोई कंपनी, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गुड यू आर प्रोड्यूसिंग, डिपेंड्स अपॉन द डिमांड इन द मार्केट ऑल्सो, डिपेंड अपॉन सो मेनी मार्केट फैक्टर्स। बट किसी भी चीज को अगर आप 3-4 बार बना के 5 बार बना के बेच लेते हैं एक साल में, इट इज अ वेरी वेरी गुड साइन ऑफ योर एफिशिएंसी, ऑफ योर मार्केट शेयर, ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी, ऑफ ऑल द ऑपरेशंस बीइंग डन इन द कंपनी। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, formula number of days in a year 365 upon inventory turnover ratio ITR। suppose inventory turnover ratio
was 5 times. So divide by 5, 73 days. It means on an average 73 days you are able to sell your stock. तो हर 73 डेज में लगभग आपका स्टॉक बिक जाता है, तो साल में 5 बार बिक जाता है। किसी दूसरी कंपनी का और कम डेज आएगा तो इसका मतलब वो और ज्यादा बार बेचेंगे। दैट मीन्स टू से दैट कंपनी इज डूइंग बेटर देन योर वन। क्लियर हो गया? रेशियो शुड बी क्लियर, उसका ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, हायर लोअर, क्या अच्छा है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ना सिर्फ डेटर्स, आप इसको बिल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। इसलिए इन दोनों को मिला के इसका फॉर्मूला क्या बना दिया उन्होंने, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मींस डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। ये हमारे क्या होते हैं, रिसीवेबल्स। डेटर्स से भी हमें पैसे रिसीव होते हैं, बिल रिसीवेबल्स से भी हमें पैसे रिसीव होते हैं। तो मिला के इन दोनों का फॉर्मूला ये है बिल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये भी कैलकुलेट होगा किस पे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2 और ओपनिंग बिल रिसीवेबल अपॉन क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल अपॉन 2। तो इससे इस रेशियो से क्या पता चलेगा? एनीबॉडी कैन गेस वन सच एनी आइडिया? नहीं, मतलब जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से क्या पता चल रहा था, वैसे इससे क्या पता चलना चाहिए? व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग दिस रेशियो? अगर हम ये रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो क्या देखना चाह रही होगी कंपनी, क्या एनालिसिस इससे हमें होगा? लाइक इन टर्म्स ऑफ डेटर्स और बिल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है ये भी टाइम्स में आएगा। और ये भी मैं बता दूं, ज्यादा आना अच्छी बात है। इसमें भी पहले वाले में भी हायर इज बेटर, इसमें भी हायर इज बेटर। तो आइडिया लगाओ, एनी गेसेस? रूप इससे क्या पता चलता होगा? ट्रेड रिसीवेबल कितनी जल्दी कलेक्ट हो रहा है या कितनी बार कलेक्ट हो रहा है। कंपनी सामान दे रही है उधार, डेटर्स बन रहे हैं, उसके बिल बन रहे हैं और वो रिसीव करने उन्होंने। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा था, बिल इज रिसीवेबल मे बी आफ्टर 1 month 2 month 3 month। वैसे डेटर्स को जो आप टाइम देते हैं पेमेंट का, तो कितनी बार इन अ ईयर आप सामान तो 5 बार भेज रहे हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता रहा है कि कंपनी साल में 5 बार लगभग अपना सामान बेचती है, तो पैसे भी तो कलेक्ट होने चाहिए उसी हिसाब से। तो कंपनी कलेक्ट कर पा रही है 3 बार 4 बार। इट शोज द कलेक्शन पॉलिसी ऑफ द कंपनी as to how many times trade receivables are collected by the firm. If you are not able to collect your trade receivables in time, they may become bad debts. They may may never be collected. Write off करना पड़ता उन्हें। And if your collection policy is not good, that will affect your business adversely, right? कि आपका सामान तो बहुत बिक रहा है and you are doing very good, inventory turnover ratio is very high, efficiently everything is being done, but जो पैसे की जहां बात आ रही है, revenue is not being generated out of it. It is all on credit basis, which is again not a good sign. So अगर ये ज्यादा आ रहा है turnover ratio, it means you are collecting debtors से और जो भी आपके trade receivable है at improper, at regular interval of times, तो आपके पास पैसे आते जा रहे हैं, then you will again circulate that money in the business,
so that is considered a good sign for the firm. So higher trade receivables turnover ratio is better for the firm. Higher is better for the firm, again because it is in times, so it should be 4 times, 5 times, depending upon the nature of the business, depending upon the collection policy, depending upon the competitors also, and the same type of business में दूसरे कितनी बार collect कर रहे हैं. In the same type of business, others are collecting 4 times. क्या आपका गारमेंट्स का बिजनेस है तो नॉर्मल जो सब लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो 4 टाइम्स कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 2 टाइम्स, इट वुड बी कंसिडर्ड नॉट गुड. नॉर्मल भी देखा जाएगा उसमें जो सेम टाइप ऑफ बिजनेस में बाकी लोग कर रहे हैं इन द मार्केट, और ये भी देखा जाएगा कि आपका टाइप का बिजनेस क्या है, बोथ. ओके, इट इज वेरी मच अंडरस्टूड. नेक्स्ट वाला क्या होगा? ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, और वी कॉल इट क्रेडिटर्स और बिल पेबल टर्नओवर रेशियो. क्रेडिटर्स और बिल पेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. ये क्या बताएगा अमित? अब तो पता चल गया होगा. ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. इस पे क्वेश्चन जो है काफी लेंदी होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें कैलकुलेट करनी पड़ती है. कई बार पूछ लेते हैं बट बताइए ओपनिंग डेटर्स कितने थे, ये नहीं पूछ रहे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीव, ये वाला आंसर दे दिया. एंड दे आर आस्किंग यू बताइए ओपनिंग डेटर्स कितने थे, क्लोजिंग डेटर्स कितने थे, और वो मैथमेटिकली पूछते हैं ओपनिंग डेटर्स फॉर 5 टाइम्स द क्लोजिंग डेटर, फिर वो फॉर्मूले में रखना पड़ता है आपको. सो इट इज मैथमेटिकल, मोर ऑफ मैथमेटिकल देन accounting. The chapter is more of mathematical, calculative than accounts. Accounts तो समझ में आ गई आपको इसमें, बट उसमें फाइनली तो मैथमेटिक्स करनी है, कहीं पर यूनिटरी मेथड है, कहीं पर फॉर्मूला है. तो दैट इज व्हाई आई सेड गिव द टाइम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी टू डू मैथमेटिक्स. वरना बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन फाइनली इसमें रिजल्ट उसका कुछ नहीं निकलेगा. और सीरियसली एंड सिंसियरली स्मार्ट स्टडी करते हुए एटलीस्ट फॉर्मूलेस बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि जैसी क्वेश्चन कोई का बोर्ड में आए यू क्विकली राइट द फॉर्मूला एटलीस्ट एंड डू समथिंग. मतलब अगर आपको पता होगा तो कुछ तो निकालेंगे ही ना उसको. यू विल गेट 2.5-3 मार्क्स आउट ऑफ 4. दैट इज स्मार्ट वन, rather than doing 200, 300, 400 questions and getting nothing. फंस सकता क्वेश्चन. दिस रेशियो एज ध्रुव सेड उसमें था कि कितनी बार हम पैसे कलेक्ट करते हैं, इसमें होगा कितनी बार आप पेमेंट करते हैं. इट विल शो हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर ट्रेड पेबल्स आर पेड बाय द फर्म. कितनी बार आप पे करते हैं. तो अगर आप 4 बार 5 बार पे करते हैं, क्योंकि अगर आप 4 बार 5 बार सामान बना के बेचते हैं तो उतनी ही बार सामान के लिए रॉ मटेरियल और बाकी चीजें जो है वो उधार भी लाते हो, तो आपके पेबल्स भी है. इफ यू आर पेइंग योर पेबल्स रेगुलरली, योर लायबिलिटीज रेगुलरली, इट इज अ गुड साइन, बिकॉज इससे आपकी जो है रेगुलरिटी काम में बनी रहती है. अदर्स, द क्रेडिटर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, they are giving you credit regularly because you are paying regularly. It will also come in times. It is also better, higher. 5 and more than 5 times is very good. Again, it is depending upon the nature of the business, type of the product, and others doing the same business वो कितनी बार पे करते हैं, उनसे भी आपको कंपेयर किया जाएगा. इफ
आप एवरेज से हायर साइड में आ रहे हैं, इट इज ऑलवेज गुड फॉर द कंपनी बिकॉज it will help you to produce regularly. It will help you that your business does not कहीं पर भी वो collapse नहीं होता है, कहीं पर भी उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है. No hindrance is there in terms of getting the raw material, daily wages, employees. इस टाइप से आपको कोई परेशानी नहीं हो रही because you are paying regularly. So not only the collection policy should be good, but the payment policy, payment करने का जो आपका एक मेथड है या तरीका है, दैट शुड ऑल्सो बी वेरी वेरी क्लियर कट. 3 इंपॉर्टेंट रेशियो हो गई. नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. वंस वी हैव डन द ratios completely and you are doing at home, there are problems, then we will discuss in the revision part. Okay, जब आप कैलकुलेशन वर्क करेंगे और पूछेंगे हमसे. नंबर 4, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, WCTR. हाउ द वर्किंग कैपिटल इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. Revenue from operations. Revenue from operations, not cost of revenue from operations. Okay, revenue from operations मतलब net sales ही हो गई. It is calculated on the basis of net sales. वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ रहे हैं, ये नॉर्मली वहां के लिए है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. नॉन मैन्युफैक्चरिंग पहले जो 3 रेशियो थे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए थे, जहां पर प्रोडक्शन का काम होता था. दिस रेशियो इज बेसिकली फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जहां पर सामान लाया जाता है और बेचा जाता है. गुड्स आर बॉट फॉर रीसेल, ट्रेडिंग बिजनेस जिसे कहते हैं. तो उसमें आपको पता है बिजनेस करंट असेट की बहुत होती है इंपॉर्टेंस. करंट असेट, क्योंकि वो करंट असेट आप जो है यूज करते हैं टू पे बैक करंट लायबिलिटीज, राइट. तो वर्किंग कैपिटल वहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. वर्किंग कैपिटल को कैसे यूज किया जा रहा है? टू जनरेट सेल्स, टू जनरेट रेवेन्यू, नेट सेल्स करने में. हाउ एफिशिएंटली द वर्किंग कैपिटल इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग सेल्स. सेल्स अगर आपकी होगी तभी आपके पास पैसा है. तो जो आपकी करंट एसेट्स है उसको इस तरीके से घुमाना है मार्केट में, इस तरीके से उसको यूज करना है दैट the sales are on a higher side. Sales volume should increase. When the sales volume will increase, then profits will increase, then everything will be on the right side. So it shows the operating capacity or efficiency of a firm. So working capital turnover ratio should be also on a higher side, also on a higher side. इसका है देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 82, क्योंकि इसमें देखिए नेट सेल्स भी निकालनी पड़ सकती है आपको अलग से. वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला आता है. वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट करंट असेट्स कौन कौन सी है, करंट लायबिलिटीज. क्वेश्चन में आपको चाहे कुछ भी दिया हो, अपने काम की चीज उसमें से छांटनी है. जो जो आपके काम का नहीं है उस पर वो नहीं होता. सर इसमें तो ये भी दिया, इसमें तो वो भी दिया होगा उसमें, बट यू स्टिक टू योर what are the items required by you, उस पे आपको स्टिक करना है, not on what is given in the question. तो देखिए इसे ध्यान से. अगर ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो लो आ रहा है, इट लो का मतलब क्या होगा? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. If it is on a higher side, it shows optimum utilization या proper utilization of your resources.
एक्सेस का मतलब तो ये हो कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक्सेस अगर आएगा, बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब तो अच्छी बात है कि आप क्या है, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा उससे चल रहा है, बट यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी, किसी भी चीज की अति ज्यादा खराब है। करंट रेशियो भी आपको बताया था, तो बहुत ज्यादा आना वो अच्छा बात नहीं है, क्योंकि उसमें उसके वो बताया था लिमिटेशंस थी उसमें, भाई ये चीजें हैं जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। यहां भी अगर ओवर ट्रेडिंग हो रही है, इट विल कम टू मच, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि बिजनेस जो है ओवर ट्रेडिंग कर रहा हो। वो अपने पैसे को उसी तरीके से यूटिलाइज करता है विच इज बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो मनी शुड बी, चाहे वो कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, चाहे आपका स्टॉक हो, दैट शुड बी यूटिलाइज्ड इन सच अ वे that it should be a optimum utilization of resources. So higher side it is an optimum utilization of resources, under अगर आएगा ये lower side it means under utilization of resources. You are not doing it efficiently. Efficiency पे question mark लगता है, operating efficiency. Last for today, last ratio for today है, ठीक है। मैंने कहा ना, कोई भी टाइम्स इस पे डिपेंड करता है व्हाट इज द नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट, मार्केट में उसकी डिमांड एंड अदर्स जो आपके जैसे ही प्रोडक्ट पे डील करते हैं, हाउ मच उनका कितना आ रहा है। एवरेज पे अगर उनका 10 आ रहा है, आपका भी 10 आ रहा है, ठीक है, उनका 12 आ रहा है, आपका 10 आ रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। एवरेज से जो है नीचे नहीं होना चाहिए। यू विल गिव द सेम आंसर टू द एग्जामिनर। सिर्फ एक का बता के, क्लास में मैंने बताया कि आपके परसेंटेज है 60, इस पे तो अलग अलग रिएक्शंस आ सकते हैं ना, 60 इज गुड, वेरी गुड, और हाउ व्हाट इट इज। अगर आप अपनी ही क्लास से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, 60 इज नॉट गुड, क्योंकि मेरी क्लास में जो है ज्यादा भी है बहुत। या अगर आप अपनी क्लास में देख रहे हैं कि सारे 60 से नीचे हैं, तो आप तो वेरी गुड हो गए, एक्सीलेंट हो गए, बिकॉज ऑल अदर आर गेटिंग लेस देन। लेकिन द सेम स्ट्रीम अदर स्कूल्स में जो है, और वहां तो 80 भी आ रहे हैं, 85 भी आ रहे हैं, इट मींस नॉट गुड। सो इट डिपेंड्स अपॉन किससे कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं, दैट हैज टू बी सीन। और हो गया इसमें, हो गए 4 टर्नओवर रेशियोज, 4 टर्नओवर रेशियोज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हायर, डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हायर होना चाहिए, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो हायर होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हायर। दे ऑल आर आल्सो नोन एज एक्टिविटी रेशियोज बिकॉज दे शो हाउ इफेक्टिवली, right, smartly, efficiently the business is doing different activities which generates revenue। ठीक हो गया। सो इस पे जो जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आप देखेंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है उसमें, एंड दे आर मैथमेटिकली भी समझ में आने चाहिए आपको। सो यूनिटरी मेथड्स आर यूज्ड, डिफरेंट फॉर्मूलाज आर यूज्ड इन दैट, रेशियोज निकालने पड़ते हैं, परसेंटेज निकालने पड़ते हैं। सो डू इट वेरी वेरी sincerely and regularly if you really want to score 100% out in this type of numerical। otherwise at least minimum जो इन चैप्टर से चाहिए वो है all the formulas, that in the question you at least write the formula and do something, some calculation to get at least 60-70% marks। so that is all for today in this class। tomorrow Monday, next class, next session, next set of ratios। after 10 minutes you can join business class।